Copper and bronze are in the ratio 3:4 in a 350 gram of alloy. The quantity in gram of copper to be added to make the ratio of 4:3 is. So there is copper and there is a bronze. This is total alloy, which is 350 grams. And they are in the ratio 3:4. Now I have to add copper to it to make the ratio 4:3. Which means ये जो ब्रॉन्ज यहाँ पर 4 था वो इसमें भी 4 ही होना चाहिए. दोनों को सेम कर दो. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो को, इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. So this will become 16:12, the new ratio here, and this will become 9:12. Correct? So 9:12 कितना हुआ? 21. 9 plus 12 21. और 21 की टोटल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है? 350 ग्राम्स. राइट? अपने को कितने की वैल्यू पूछी है? ये 9 था, ये 16 हो गया, तो 7 से इंक्रीज हुआ, तो अपने को 7 की वैल्यू पूछी है कितनी है ना? बिकॉज ये 9 था, अभी 16 हो गया, तो 9 और 16 रेशियो 7 ऐड हुआ है, तो 7 की वैल्यू देख लेंगे कितनी है. बिकॉज 21 की वैल्यू पता है, तो डिवाइड दिस रेशियो बाय 3, तो आपको क्या मिल जाएगा? 7 की वैल्यू 350/3 होगा. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 116.67. ऑप्शन देख लेने का, आगे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है. When 1 liter of water is added to a mixture of milk and water, the new mixture contains 25% of milk. When 2 liters is added to the new mixture, the resultant mixture contains 40% milk. What is the percentage of milk in the original mixture? Again, this is very simple. So there is milk. I'm not going to write now entire milk and water. I will represent it by M and W. The new mixture contains one liter of water is added to the mixture of milk and water, which means I don't know the initial ratio. I am adding 1 liter of water to it. This is liters. The new mixture contains 25% of milk. So 25% of milk का मतलब 75% of water होगा. So 1:3 का रेशियो होगा. 25:75, 1:3. तो ये रेशियो 1:3 बन गया जब 1 लीटर पानी ऐड किया. When 2 liters of milk is added, when 2 liters of milk is added now, the resultant mixture contains 40% milk. तो अगर ये 40% मिल्क है तो 60% वाटर हुआ होगा. 40:60, 2:3 का रेशियो हो गया. What is the percentage of milk in the original mixture? So you see here milk is added, water remains same, but यहाँ तो सेम ही है, तो no worries. 1 का 2 हो गया रेशियो में, तो रेशियो 1 से बड़ा, लेकिन 1 की वैल्यू 2 लीटर से बड़ी है. राइट? मतलब ये 2 लीटर हुआ होगा और ये 6 लीटर हुआ होगा. अब जब ये 6 लीटर है तो ये 1 लीटर ऐड करने के बाद 6 लीटर बना है ना, तो यहाँ 5 लीटर हुआ होगा. और अगर ये 2 लीटर है, यहाँ पर तो अपन ने वाटर ऐड किया था, मिल्क तो सेम ही रहना चाहिए, तो ओरिजिनली भी 2 लीटर ही मिल्क होना चाहिए, तो 2:5 का रेशियो होना चाहिए. बट उससे पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल. मिल्क कितनी है? 2. टोटल कितना है? 7. तो 2/7 कितना होता है? 2 into 1/7. 1/7 in my percentages video you must have seen is 14.28%. So this should be 28.56%. This is the answer. Clear? Next. Three liters of liquid M is taken and mixed with 5 liters of liquid N. The mixture is divided into 4 equal parts. If one of these parts, some amount of liquid M is added, so that the ratio of M and N in this part becomes 6:5. Now all parts are mixed back together. What will be the ratio of liquids M and N in the total mixture now? So there is some quantity of M, some quantity of N. उनको 4 equal parts में divide कर दिया. चारों equal parts में divide करके एक पार्ट में कुछ लिक्विड, दूसरा एक M क्वांटिटी का लिक्विड ऐड किया और फिर वापस चारों को मिला दिया. अब नए में कितना है. So this is just
liquid M and liquid N. So there is liquid M and there is liquid N. This is 3 liters and this is 5 liters. So this is the first scenario, which means they are in the ratio 3:5. Now they are broken into 4 parts. The 4 parts be M:N, M:N, M:N और M:N ही होगा कि नहीं होगा? Now टोटल 8 लीटर्स है, 8 लीटर्स को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, तो मतलब ये हर पार्ट 2 लीटर्स का होगा, 4 इक्वल पार्ट्स में. And since we are dividing the entire mixture into different parts, the ratio of milk and water, the ratio of liquid M and liquid N in each of this part should be same only. So 3:5 का रेशियो होना चाहिए सब में. क्लियर है? अब 3:5 मतलब 3 + 5 is 8. रेशियो का टोटल 8 है और क्वांटिटी में 2 लीटर्स है, तो एक का वैल्यू 0.25 लीटर्स होगा कि नहीं होगा? तो ये 0.25 लीटर्स एक है, मतलब ये 0.75 लीटर्स है और ये 1.25 लीटर्स है. ये 0.75 है, ये 1.25 है, ये 0.75 है, ये 1.25 है, ये भी 0.75 है और ये 0.125 liters है. Now what we are saying is, if one of these parts some amount of liquid M is added, so that the ratio of M:N becomes 6:5. Liquid M added. So इसमें मैंने M ऐड किया एक पार्ट में. फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाला पार्ट ले लेता हूं मैं, तो जो रेशियो बन गया वो 6:5 का बना, विच मीन्स मैंने n को टच नहीं किया है, तो n यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही होगा, मतलब n इसमें 1.25 लीटर्स ही होगा. अच्छा, ये 3 का 6 हो गया, मतलब डबल हो गया क्वांटिटी, तो 0.75 था तो 1.5 लीटर्स हो गया. क्लियर है? नाउ दे आर एडिंग बैक अगेन एवरीथिंग. सो अगर वो एड बैक अगेन एवरीथिंग कर रहे हैं तो जितने भी मिल्क है एक साथ वापस मिल जाएंगे, राइट? सो दिस विल बी 75, 1.5 + 1.5 3.75 हो जाएगा फाइनली मिल्क जब वापस ऐड करेंगे तो. और ये कितना हो जाएगा? ये सब 1.25 ही रहेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, बराबर ना? 1.25 1.25 2.5 2.5 + 2.5 5. So ratio 3.75:5 हो गया. So I can just say 375:500. 25 से डिवाइड कर दो इसको, तो 25 कितने से जाएगा? 12. चलो 5 से डिवाइड कर लेते हैं. 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा. ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 75 हो जाएगा. 3:4. तो जो रेशियो नया रेशियो बनेगा वो 3:4 है. आई डोंट थिंक सो दिस इज अ सम विच शुड टेक मोर टाइम, एंड दिस इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड वेदर आप समझ रहे हो कि उसको मिक्सचर को ब्रेक कर रहे हैं, एक क्वांटिटी को निकाल रहे हैं, एक में किसको ऐड कर रहे हैं, वापस ऐड बैक कर रहे हैं, तो रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या सेम रह रहा है. ऑल दिस थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड बाय रीडिंग द सम. So one of the important things is to just understand reading the sums. You'll be able to crack these problems very well. A beaker contains acid and water in the ratio 1:x. When 300 ml of the mixture and 550 ml of water are mixed, the ratio of acid and water becomes 2:5. What is the value of x? So देखो, एक acid है, एक वाटर है, उनका जो रेशियो दे रखा है वो 1:x दे रखा है. ना अपन ने क्या किया, ये जो मिक्सचर है वो 300 ml का लिया और इसमें मैंने 50 पानी मिलाया.
तो मेरा रेशियो 2:5 हो गया। मतलब टोटल फाइनल क्वांटिटी मेरी 350 ml की बची। तो इस 7 की जो वैल्यू है वो 350 दे रखी है, बरोबर है। और आपको x की वैल्यू पूछी है, तो एक की वैल्यू 50 होगी। मतलब ये आपका इसमें 100 रहा होगा एसिड और इसमें 250 पानी रहा होगा, करेक्ट। सो एसिड वाज 100 लास्ट में और पानी वाज 250। तो अब ये 250 जो था वो 50 ऐड करने के बाद बना, मतलब यहां पर पानी 200 रहा होगा, करेक्ट। और अगर ये 100 है तो ये भी 100 ही रहा होगा पहले, बिकॉज एसिड तो चेंज नहीं हुआ ना, सिर्फ पानी ही ऐड किया ना हमने इसमें, तो एसिड तुम्हारा इसमें 100 ही रहा होगा। अब मेरे को 100 अपॉन 200 जो है एसिड इज टू वाटर का रेशियो 1/x दिया हुआ है, तो इसको भी मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूं। तो x की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पर x 200 नहीं है, ये x रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डो नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस x, डो नॉट राइट दिस x, डोंट डिवाइड दिस 200 इन द रेशियो 1:x विल बी। सो एक्चुअली अपन क्वांटिटी का रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो से अपन इक्वेट कर देते हैं, तो अपने को x मिल जाएगा। Hello students, I hope you like this video of mixture and alligation. If you have any queries or any sums, because the sums tend to be very long, please connect to me on my YouTube channel or WhatsApp me on my WhatsApp number and keep me motivated, and please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you so much.